Now student, I am going to explain fourth characteristics of living beings. Student, mostly living beings reproduce. They produce their offsprings of their own kind. Student, what is reproduction? So it is a life process of formation of new individual of same kind. Yeah, you can say that life arises from pre-existing life. स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग बींग्स अपने ही टाइप के इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं और एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ये प्रोसेस किसी इंडिविजुअल की जीवित रहने में ज़रूरी नहीं होता है। इट डिस्टिंग्विश लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। ये प्रोसेस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस बताता है कि नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस बट लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, बट इट इज़ नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। लेकिन ये एक लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग एंड वर्कर बी, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्योंकि सभी लिविंग बींग्स अगर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो ये डिफाइनिंग हो जाएगा, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस या ये फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट, देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। नंबर 1 इज आसेक्सुअल, नंबर 2 इज सेक्सुअल। Question here, what is asexual? You know that in class 10th already you have studied. Uniparental reproduction is known as asexual. In this mode sex cells are not involved. इसमें sex cell involved नहीं होती, जैसे amoeba reproduce by binary fission, और binary fission is a asexual mode of reproduction. Now, biparental reproduction is known as sexual reproduction, in which sex cells are involved, जिसमें sex cell involve हो जाती हैं, और human being reproduce by asexual, reproduce by sexual mode of reproduction. So student, in this way you can understand what is asexual and what is sexual reproduction. Now, I discuss here various method of asexual reproduction with example. Student, there are 6 category या 6 method of asexual reproduction. First is fission, second budding, third by spore formation, fourth fragmentation, fifth regeneration, and sixth vegetative propagation. Now fission. Fission is an asexual mode of reproduction in which the unicellular organism divide and form daughter cells. Form 2 or more daughter cells are formed. अगर 2 डॉटर सेल बन रही हैं एक लिविंग बीइंग से तो वो बाइनरी फिजन होगा, जैसे अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। अगर कोई यूनिसेलुलर लिविंग सेल डिवाइड करके मैनी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है तो ये मल्टीपल फिजन कहलाएगा। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स विच इज़
malarial pathogen. This plasmodium reproduced by multiple fission. Now student, yeast and hydra reproduce by budding method. Rhizopus या bread mold reproduce by spore formation. Spirogyra reproduce by fragmentation process. Planaria reproduce by regeneration process. Grass, rose, potato, sugarcane reproduce by vegetative propagation. Student, in this way you can understand various methods of asexual reproduction. So student, I think that you have understood the fourth characteristics of the reproduction. Reproduction is not a defining feature of living being, you know that. Now next, fifth characteristics is that homeostasis. Question here, what is homeostasis? Student, it is a maintenance of constant and favorable internal environment conditions suitable for functioning of body organs. Student, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के लिए जो इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी का है, अगर वो कांस्टेंट और फेवरेबल मेंटेन रहता है तो इस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहा जाता है। बॉडी ऑर्गन्स किसी ऑर्गेनिज्म के जब ही अच्छे से वर्क करेंगे जब उस बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट और फेवरेबल मेंटेन रहेगा, तभी ऐसा अगर है तो समझिए फंक्शनिंग अच्छी होगी। और इस प्रोसेस को कि जिससे हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट फेवरेबल और कांस्टेंट मेंटेन रहे, दैट प्रोसेस नोन एज द होमियोस्टेसिस। नाउ स्टूडेंट, देयर आर two example, thermoregulation and osmoregulation. Question here, what is thermoregulation? So student, maintenance of constant body temperature is known as thermoregulation. अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगातार कांस्टेंट है तो ये प्रोसेस कहलाएगा थर्मोरेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड आयनिक बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो आयंस हैं वाटर का कांस्टेंट अगर इनका मेंटेनेंस है तो दैट प्रोसेस नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन। तो बॉडी के अंदर आयन और वाटर का जो लेवल है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, दैट प्रोसेस नोन एज द ऑस्मोरेगुलेशन। तो होमियोस्टेसिस सभी लिविंग बीइंग के अंदर लगभग कांस्टेंट होता है और ये नॉन लिविंग बीइंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए आप वी कैन से दैट होमियोस्टेसिस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग्स। नाउ स्टूडेंट, after fifth characteristic, this is the sixth characteristics of living beings, that is organization. स्टूडेंट, कोई भी लिविंग बीइंग्स हुआ उसका एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म केवल सेल से बने होते हैं तो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल। कुछ ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल तक का होता है, कुछ का ऑर्गन लेवल तक का होता है, कुछ का ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का होता है। तो अगर जैसा ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी कह सकते हैं कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लेकिन बॉडी जो उनकी बनी होगी वो सेल से ही बनी होती है अगर वो लिविंग बीइंग्स है तो ऑर्गेनाइजेशन, it is a differentiation of body into smaller units and subunits which are arranged in orderly manner. Organization है क्या कि स्टूडेंट, it is a differentiation of body into smaller unit. जो किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो उस छोटे छोटे यूनिट्स और सब यूनिट्स के अरेंज होने से, एक ऑर्डरली अरेंज होने से
जो डिफ्रेंसिएशन होता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लिविंग बीइंग्स को ऑर्गेनिज्म कहा गया है। जैसे सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है, टिश्यू के ग्रुप से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग थिंग्स सेल से बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सेल से बने हुए हैं और सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। in coming lecture I explain some more features of the living beings, so wait for it.